Hello guys, welcome to my channel. So guys, today I'm going to start again a new chapter from class 11, that is S block element. Okay, as I already started, I already uploaded some of the contents from P block element in my last day only. So today again I am taking a new chapter or new unit from class 11. Okay, that is S block element. Okay, so this S block element and the P block element are really very different. They are very different. That means different means S block element generally deals with the, you have to deal with the metals only. But in P block, what I have started that in particular section, that is a P block, you will deal with the non-metals as well as you have to deal with some metalloids as well as have to deal with the non-metals. So you will encounter all these things in a P block elements. But in S block, they are purely metals. That means whatever you have to study, that will be only from the metals. Okay, so metals, and generally you can encounter metals in group 1 to group 2 also, because in S block you have to study for group 1 and group 2 only. Group 1 plus group 2, they are not, they are only they generally named, और they generally हम लोग ज़्यादातर इसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, सो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, नाउ what is group 1 and group 2? First question arises, and why they are called S block elements? See, F block element, D block element, P block element, and the S block element. Why they are called S block element? The simple definition is that the last electron enter in any one of the or last electron enter in S orbital or P orbital or D orbital or F orbital, and similarly they will be named as S block, P block, D block, or F block. Now, basically group 1 and group 2 and comprises or generally named as S block element. Why? Because the last electron, if you see the electronic configuration of this particular group 1 and group 2 element, then you will see that the last electron entering in one of the S orbital. Okay, so that's why they are known as S block element. Now, the question is that group 1 and group 2 comprise, or group 1 and group 2 constitute an S block element. Now, this group 1 has a common name, that is we all familiar with this particular group, that is also known as alkali metals. Clear? ग्रुप 1 को हम लोग एल्कली मेटल्स भी बोल सकते हैं. अगर एल्कली मेटल्स आते हैं आपका क्वेश्चंस पे, तो आप तुरंत इसको मान लीजिए ये हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जा रहा है, और ये कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है जनरली, दैट इज योर ग्रुप 1. एंड ग्रुप 2 अगर हम लोग बोलना चाहें तो ग्रुप 2 का नाम है एल्कालाइन अर्थ मेटल्स. एल्कालाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, बिकॉज दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. सो मैक्सिममली दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, इसलिए ये लोग को एल्कालाइन या एल्कली मेटल्स बोला जाता है. अर्थ मेटल मीन्स दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. ओके, नाउ they are alkali means normally they are generally have a tendency, or they generally have a उसका जो compound formations है, ये सब element का जो compound होता है generally they are bases in nature, that is they are basic in nature. Basic in nature मतलब they form generally hydroxides like this way. That means generally they are not present in an elemental state, they always present in a combined state, but they are alkaline in nature. Alkaline means simply we can say that they are basic. So going to this chapter in a deep manner, you will see some compounds of group 1 and group 2, where you will see that some of the important compounds of like sodium, then some of the important compounds of your, suppose you can check calcium, magnesium. So particularly in this particular section, you will get to know some of the important compounds of group 1 and group 2, their physical properties. Then also you will see some chemical reactivity also, that is chemical reactions. Okay, so now our main task for this particular S block element, that we have to know
each and every element, their electronic configurations, the general electronic configurations which will be arise for S block element, because see, in each and every that means section, that is S block, P block, D block and F block, there will be a general electronic configurations of particular groups. Okay, not particular groups, you can say particular families. So S block elements का family का एक general electronic configurations भी होंगे, साथ ही साथ बाकी जो भी होगा उन लोग का भी क्या होगा, जनरली एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, हम लोग को मान के लेके जाना है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहा, इसके आगे मुझे ग्रुप 1 का एलिमेंट मुझे अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट जो होते हैं, आप अगर तुरंत पीरियोडिक टेबल आपके सामने है तो आप तुरंत खुल के देख सकते हैं। सो द फर्स्ट एलिमेंट विल बिकम एज लिथियम, then sodium, potassium, rubidium, cesium, and the last element that is francium, which is a radioactive element that is not generally not deal with this particular group 1, but it can be deal with a particular chemistry, particular class of chemistry that is called radioactive chemistry, or simply you can deal with this particular element in nuclear chemistry. Okay, so basically in group 1 and group 2 you will get some radioactive element. There will be two radioactive elements you will get. One is francium and the other one is your radium. Okay, these are both radioactive element. They never, that means their reactions will never complete it, and you will get it in this particular theory in chemical kinetics in class 12. Okay, so not we are dealing with this particular element, but simply first and foremost duty of ours is that we have to know each and every element, the elements from group 1 as well as from group 2. Now why they are called simply they are called alkali metals, and their group 2 is known as alkaline earth metals. Okay, now what will be the general electronic configurations as well as what will be the general electronic configurations first of all, and the some elements which is coming from this particular group 1 and group 2. So अगर आप ग्रुप 1 को देख रहे, पहले हम लोग ग्रुप 1 को अभी फॉलो करेंगे, इसके बाद हम लोग ग्रुप 1 का स्टडी करने के बाद हम लोग ग्रुप 2 में मूव करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग ग्रुप 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो ग्रुप 1 में मेरा पहला काम क्या है कि ये लोग को एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोला जाता है। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में सीधा सीधी बात है, तो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 हो, हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट भी बोलेंगे उसको। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट आर द एलिमेंट्स फ्रॉम द ग्रुप 1, फर्स्ट एलिमेंट इट विल कम दैट इज लिथियम, राइट। और हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन, क्योंकि लिथियम के ऊपर ही हाइड्रोजन रहता है, मतलब तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने हाइड्रोजन चैप्टर वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और हाइड्रोजन का पोजीशन एनोमेलस है। एनोमेलस मतलब you can place either in group 1 as well as in group 17. So this position is, the hydrogen position is not fixed, sorry, the hydrogen position is not fixed yet. So its position is anomalous. So that's why it can either be placed in group 1 as well as in group 17. So basically we will start from the lithium, that is purely from group 1 element. The first element from the group 1 is lithium. Then it will, the next element, the very reactive element, that is sodium. Lithium is also a very reactive element. Lithium, sodium, then potassium. पोटेशियम कहाँ पे रखा जाता है। पोटेशियम हम लोग जनरली वैक्स में कोटेड रखते हैं, मतलब ठीक है। और सोडियम का हम लोग रखते हैं केरोसिन स्वेल में, हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट। ओके, देन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देन आता है रुबिडियम, ठीक है, देन आता है सीजियम। ठीक है, सो दीज आर द पर्टिकुलर एलिमेंट्स यू विल डील इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप 1। एंड लिथियम का अगर आप एटॉमिक सिंबल देखेंगे, इट इज Li, सोडियम का होता है Na, पोटेशियम का होता है K, रुबिडियम का होता है कितना, रुबिडियम Rb, क्लियर, और सीजियम का होता है C_s। ठीक है, तो आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पढ़ने के आगे आपको एलिमेंट्स वगैरह आपका मुंह में होना चाहिए, एकदम यहाँ पे रहना चाहिए, ऑन द टंग, आपका यहाँ पे टिप ऑफ द टंग पे रहना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल होने वाला है। ठीक है, और बच्चे लोग सीख भी लेते, बहुत इजी है, Li, Na, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है, ठीक है, तो लिथियम का आप पहला एलिमेंट है लिथियम, एटॉमिक नंबर इज 3। ठीक है, सोडियम का कितना होगा, सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का होता है कितना 19, और अगर रुबिडियम और सीजियम का चेक करते हैं तो रुबिडियम का होता है 37 और सीजियम का होता है 55। क्लियर, तो सीजियम 55, रुबिडियम 37,
पोटेशियम 19, सोडियम 11, लिथियम 3। और अगर आप और एक एलिमेंट आप ऐड करना चाहते हैं तब भी आप ऐड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रांशियम। ठीक है, और फ्रांशियम का आप अगर एटॉमिक सिंबल देखते हैं तो FR लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर होता है 87। ठीक है, नीचे जो लिखा जाता है उसका एटॉमिक नंबर वही इंडिकेट करता है। ठीक है, सो अब एक बार देख लीजिए, लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3, सोडियम कितना है 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55, 87 इज फ्रांशियम। ओके राइट। सो यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड सुपरस्क्रिप्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, नॉट सुपरस्क्रिप्ट, यू कैन राइट सबस्क्रिप्ट, लेफ्ट हैंड मोस्ट, ये सब जनरली क्या है एटॉमिक नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दीज आर द सम एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 1, you have to study their electronic configuration, their sizes. That means what you have to study in this particular chapter that I am telling you. So first and the first thing you have to study for that, that is electronic configuration you have to study. In P block also you have to study the electronic configuration of your first group, that is group 13 and group 14. Similarly in group 1 also you have to study for electronic configuration. Then some of the physical properties, or simply you can say the properties like atomic size, then ionic size, then hydration enthalpy, then ionization enthalpy, then some important compounds, SiC, some important compounds. So these are the particular things you have to study. Some of the things may be there, and also one more, yes, these are some particular things you have to study in this group 1, as well as for the group 2 similar trend will be followed. Okay, and some of the other properties may be there like density, their melting point, their reactivity, that is it will come under your chemical reactions. Okay, so that means you have to study in a very detailed manner in this particular unit. Okay, and it's a very interesting chapter, you know. Okay, so you will get you get so much fun of this chapter because it's a very interesting chapter, as I am telling you always. Okay, so यहाँ पे हम लोग का जो पहला टास्क होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखेंगे आज। तो लिथियम किस पीरियड का एलिमेंट है? तो अगर आप लिथियम का तुरंत इस साइड में आते हैं, लेफ्ट मोस्ट आते हैं, तो 2 नंबर पीरियड का एलिमेंट है। सिमिलरली सोडियम का आते हैं तो 3 नंबर पीरियड, अगर पोटेशियम का आता है तो 4 नंबर, रुबिडियम अगर आते हैं तो 5 नंबर, सीजियम अगर आते हैं तो आपका हो जाएगा 6 और फ्रांशियम का हो जाता है 7। तो मैंने यहाँ पे अगर मैंने एक ही एलिमेंट को एक बार देख लिया, मैं उसका वैलेंस शेल्स तो लिख सकता हूँ। हाँ, मुझे प्रॉब्लम हो सकता है अगर मुझे पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने दिया, बट नॉर्मली आपको कभी नहीं बोलेगा कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सीख लीजिए। हाँ, अगर आपको सीखना है, सीखने भी ज़रूरत नहीं है, लॉट्स ऑफ जस्ट यू हैव टू डू प्रैक्टिस। ओके, एंड द प्रैक्टिस इफ यू हैव, देन यू कैन राइट ईच एंड एवरी एलिमेंट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत टफ नहीं है। ठीक है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, तो ऐसे करके ट्रेन जाते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज, दैट इज अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल। तो उस प्रिंसिपल को आपने अगर अच्छी तरीके से पढ़ा तो आपको कोई भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना है तो बहुत मुश्किल बात नहीं है, वहाँ पे वो मुश्किल टास्क नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिर्फ पीरियड नंबर को मैंने यहाँ पे कंसिडर किया। और पीरियड नंबर क्या डिटरमाइन करते हैं हम लोग, पीरियड नंबर से हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, दे आर वैलेंस शेल्स। तो ये पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली इसका जो वैलेंस शेल्स होगा ये 2s1 होगा। अगर इसका देखेंगे तो 3s1 होंगे, 4 देखेंगे तो 4s1 होंगे, 5 का देखेंगे तो 5s1 होंगे, 6 का देखेंगे तो 6s1 होंगे, 7 का देखेंगे तो 7s1 होंगे। दिस इज द वैलेंस शेल्स ऑफ योर पर्टिकुलर एलिमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर रहा है, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन द ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द s ऑर्बिटल। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज s ब्लॉक एलिमेंट। और अगर आप इसको लिखना चाहते हैं इन अ डिटेल वे, देन ऑल्सो यू कैन राइट सिमिलरली प्लेसिंग ए नोबल गैस होगा, नोबल गैस रहेगा, इसके बाद 2s1 होगा। मतलब लिथियम का अगर हम लोग लिखना चाहते तो 1s2 2s1 लिखते हैं, तो 1s2 की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, हीलियम लिख सकता हूँ। ऐसे क्या बनाते जाइए, ये नियॉन होंगे, ये आर्गन होंगे, ये क्रिप्टन होंगे, ये जेनॉन होंगे। ठीक है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, और जो लास्ट एलिमेंट होगा वो रेडन होंगे, Rn। तो देखा मैंने तुरंत कैसे लिख दिया।
अगर आप एक एलिमेंट का आपका पीरियड नंबर आपको मालूम है, वहाँ से आप वैलेंशियल्स निकाल सकते हैं उसका, साथ ही साथ और ये जो वैलेंशियल्स आपने लिखा तुरंत उसका आगे क्या होगा, एक नोबेल गैस होगा, बिकॉज हीलियम, नियॉन, आर्गन, ट्रिटियम, ज़ेनॉन, रेडन दैट आर ग्रुप 18, दर ऑल आर ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ओके। और ग्रुप 18 के बाद तुरंत क्या आएगा, आपका वैलेंशियल्स आएंगे। और क्रिप्टन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप तोड़ के लिखना चाहते हैं तब भी आप लिख सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ आपको जानना है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है। सो धीरे धीरे हम लोग चीज़ को सीखेंगे, बहुत ईजी है। अगर आपको ग्रुप 1 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने आते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चंस आपका आता है तो आप ऐसे लिख के आइए, लिथियम का आने से हीलियम 2s1 लिखिए, सोडियम आने से नियन 3s1 लिखिए, पोटेशियम आने से आप लिखिए आर्गन 4s1 लिखिए, रुबिडियम आने से आप लिखिए क्रिप्टन 5s1 लिखिए, सीजियम आने से आप लिखिए जेनॉन 6s1 और फ्रांशियम आने से आप लिखिए रेडॉन 7s1। बहुत ही ईजी है, आप थोड़ा एक बार स्टडी करिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप ये सब क्वेश्चंस अगर आपके पास, अगर आप डील कर रहे हैं इन एग्जाम, ओके। और इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो यू हैव टू नो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। जितना भी बड़ा एग्जाम्स हो उसमें भी आते रहते हैं, ठीक है। मैं भी जितना भी एग्जाम देने जाता हूँ वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक ना दो हम लोग को क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। ये मैं तुम लोग को वो करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट it's a very very important thing for the chemistry, you have to know the electronic configurations, okay। ठीक है, मैं जानता हूँ तुम लोग सीख लोगे, इतना भी तुम लोग बहुत पढ़ते हो, बहुत मेहनती हो, तो आराम से सीख लोगे, इतना तो मुझे क्लियर है यहाँ पे एक चीज़ को। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिख सके, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग ने ग्रुप 1 का भी फोकस कर रहे हैं, तो ग्रुप 2 का हम लोग बात, these are the some particular electronic configurations of your group 1 element. Now, how we can establish the general electronic configurations for your group 1? So, what will be the general electronic configuration in this case? So, general electronic configuration. So, यहाँ पे हम लोग general electronic configuration कैसे establish कर सकते हैं? So, that is our task for today. So, general electronic configuration हम लोग कैसे यहाँ पे establish कर सकते हैं? Let's see. So, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक नोबेल गैस लिखा है, यहाँ पे हर एक एलिमेंट के वैलेंशियल्स के आगे मैंने क्या लिखा है, मैंने नोबेल गैस यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इज गिवन बाय अ ब्लू मार्क्स, ओके। सो जो ब्लू मैंने अंडरलाइन किया, these are the noble gases. So you can see the valencials are 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1. That is 2s1 means belongs from the period 2 element, no? So general electron configuration you can write like this way, that is noble gas, okay। So you can write noble gas then NS1। अगर आप लिथियम डील कर रहे तो आप क्या लिख रहे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पीरियड 3 का एलिमेंट, पीरियड 2 का एलिमेंट है लिथियम, सो यहाँ पे क्या होगा 2s1। अगर 2s1 होंगे तो उसका आगे क्या होगा, नोबल गैस हीलियम होंगे। तो ऐसे करके आप कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस आप यहाँ पे दे सकते हैं। या कोई कोई बुक्स में आप ऐसे भी दिखने को मिलेंगे, सिंपली NS1 लिखते हैं, ठीक है। तो NS1 भी लिख सकते हैं, या सिंपली नोबल गैस in a bracket, that is your third bracket, and after writing noble gas in a third bracket followed by NS1, okay। So this is the general electronic configuration of your group 1 element। तो कोई भी ग्रुप का हो, कोई भी आपको सिर्फ पीरियड नंबर याद रखना है कि कौन सा पीरियड से ये बिलोंग करते हैं, तो कोई आप तुरंत उसका वैलेंशियल्स लिख सकते हैं, क्लियर। सो वेरी वेरी इजी, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस you will get this type of questions। they may ask you to write the general electronic configuration of S block या group 1 बोला जाएगा, ठीक है। तो अगर S block बोला जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, अगर S block बोला जाएगा तो आपका तुरंत आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट दोनों लिखना पड़ेगा, तो नोबेल गैस क्या हो जाएगा, NS2 हो जाएंगे, नॉट इट इज़ फॉर ग्रुप 2। और अगर सिंपली S block बोलेगा तो आपको क्या लिखना होगा, नोबेल गैस दैट इज NS1, 2। अगर 1 हुआ तो ये पीरियड ग्रुप 1 का एलिमेंट है, और अगर 2 हुआ तो NS2 होंगे, मतलब ग्रुप 2 का एलिमेंट है। तो ये होता है S ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, नोबेल गैस NS1, 2, या सिंपली NS1, 2 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू गिव योर ओनली
कॉन्सेप्ट ओनली, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप तुरंत लिख सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अच्छा लगा, ठीक है। और ऐसे पढ़ते रहिए, और वीडियोस जो भी मैं डाल रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से आप लोग देखिए। ज़रूर आपको मेरा वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेंगे। ये मेरा मतलब वो है कि मैं इतना श्योर हूँ कि आपको बेनिफिट होगा ही, मतलब, ठीक है। सो आई होप यू आर ऑल स्टडिंग, यू आर ऑल डूइंग गुड, यू आर ऑल इन ए स्माइल मूड, ओके। आपको तुरंत, आपको हर समय स्माइल करते रहना है, जो भी सिचुएशंस आए आपको फेस करना है, बिकॉज लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, ठीक है। सो बी पॉजिटिव, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, मम्मी पापा का ध्यान रखो, और खुद भी अच्छी तरीके से रहो अभी, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।